हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा थ्रोइंग अ ट्री बाय थॉमस हार्डी। ये पोएम आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड द एक्सप्लेनेशन विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। होप इट हेल्प्स यू। सो लेट्स स्टार्ट। एक बात और बता दूं मैं कि जब भी आप पोएम बोलते हो पहले पोएम का नाम, उसके बाद बाय उसका पोएट का नाम बोलना चाहिए। जैसे मैं अभी रेसिटेशन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थ्रोइंग अ ट्री बाय थॉमस हार्डी। द टू executioners stalk along over the knolls, bearing two axes with heavy heads shining and white, and a long limp two-handled saw toothed for cutting great poles. And so they approached the proud tree that bears the death mark on its side. Jackets doffed, they swing axes and chop away just above ground, and the chips fly about and lie white on the moss and fallen leaves, till a broad deep gash in the bark is hewn all the way round, and one of them tries to hook upward a rope, which at last he achieves. The saw then begins, till the top of the tall giant shivers. The shivers are seen to grow greater with each cut than before. They edge out the saw, tug the rope, but the tree only quivers, and kneeling and sawing again, they step back to try pulling once more. Then, lastly, the living mast sways, further sways, with a shout. Job and Ike rush aside, reach the end of its long staying powers. The tree crashes downward. It shakes all its neighbors throughout, and 200 years' steady growth has been ended in less than 2 hours. Now, पोएम को स्टार्ट करने से पहले इनके पोएट थॉमस हार्डी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सो थॉमस हार्डी वॉज born in the year 1840 and he died in the year 1928, was an English novelist and poet. Some of his famous novels are From the Madding Crowd, The Mayor of Casterbridge, and The Return of the Native. In this poem, he describes how a large strong tree, which has lived for some 200 years, is cut down by two woodcutters within a couple of hours. The poem shows a deep feeling for the tree and depicts its feelings as an act of unfailing cruelty. Start करते हैं। The two executioners stalk along over the knolls. यहाँ executioners का मतलब हुआ जल्लाद, people who carry out death sentences, whose job is to kill somebody as legal orders. Okay? Now, stalk walk quietly and threateningly like hunters after prey. और knolls का मतलब हो गया small hills or mounds with rounded tops. So, दो जल्लाद टीलों पर आगे बढ़ते हैं, bearing two axes with heavy heads shining and white, जिनके सिर दो कुल्हाड़ियां लेकर ये दो जल्लाद चलते हैं, जिनके सिर चमकते और चौड़े होते हैं। ओके, ना यहाँ कुल्हाड़ियों की बात हो रही है। ओके, एंड अ लॉन्ग लिम्प two-handled saw tooth for cutting great poles. और क्या होता है उनके पास? और एक लंबी लिम्प मतलब होता लंगड़ा,
सो यहाँ पे एक लंगड़ी 2 हैंडल वाली आरी जो कि कारपेंटर्स के पास होती है, जो बड़े तने काटने के लिए दांत वाले, तूत होते ना, दांत वाले होती है। ओके, और इस तरह से वो ट्री को काटते हैं। ओके, एंड अ लॉन्ग लिम 2 हैंडल्ड सॉ टूथ फॉर कटिंग ग्रेट पोल्स। ये समझ में आ गया। एंड सो ग्रेट पोल्स मतलब ये ट्रंक ऑफ ट्रीज, जो बड़े तने होते हैं। एंड सो दे अप्रोच द प्राउड ट्री दैट बियर्स द डेथ मार्क ऑन इट्स साइड। ओके, सो और इस तरह वे उस गौरवान्वित या प्राइड से भरा हुआ उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जिसके एक तरफ मौत का निशान है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Jacket stopped. They swing axes and chop away just above the ground. Now, doffed मतलब taken off, ठीक है। वो जैकेट उतारकर कुल्हाड़ी घुमाते हैं और जमीन के ठीक ऊपर काटते हैं। And the chips fly about and lie white on the moss and fallen leaves. और चिप्स जो लकड़ी के छोटे टुकड़े, इनको चिप्स यहाँ कहा जा रहा है, उड़ते हैं और काई और गिरे हुए पत्तों के ऊपर सफेद पड़े रहते हैं। ओके, टिल अ ब्रॉड डीप गैश इन द bark इज hewn ऑल द वे राउंड। hewn मतलब कट। ओके, जब तक कि छाल में चारों ओर एक चौड़ा गहरा घाव नहीं हो जाता। ओके, एंड वन ऑफ देम ट्राइज टू हुक अपवर्ड अ रोप विच एट लास्ट ही अचीव्स। और उनमें से एक रस्सी को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, जिसे वह आखिरकार हासिल कर लेता है। द सॉ देन बिगिन्स टिल द टॉप of the tall giant shivers। फिर सौ यहां आरी को कह रहे हैं। फिर आरी शुरू होती है जब तक कि लंबे विशालकाय पेड़ का शीर्ष मतलब उसका टॉप, शीर्ष, वो आखिरी ऊपर की छोर कांपने लगता है। The shivers are seen to grow greater with each cut than before। हर कट के साथ कांपना पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। They edge out the saw, tuck the rope, but the tree only quivers। ओके, वे आरी को किनारे से बाहर निकालते हैं, रस्सी को खींचते हैं, लेकिन पेड़ सिर्फ कांपता है। And kneeling and sawing again, they step back to try pulling once more। और घुटने टेक कर और फिर से आरी चलाते हुए वो एक बार फिर खींचने की कोशिश करने के लिए पीछे हटते हैं। Then lastly the living mast further sways with a shout। फिर अंत में क्या होता है, ये जीवित मास्ट जो टॉल स्ट्रेट पोस्ट है, इस ट्री का जो तना जो ट्रंक है, ओके, वो हिलता है और भी जोर से हिलता और एक चीख के साथ वो शेक होता है। ठीक है, जॉब एंड आइक रश असाइड। ये जो 2 वुड कटर्स है उनके नाम है जॉब और आइक। ये एक तरफ को भागते हैं। Reached the end of its long staying powers। Now, अपनी लंबी समय तक टिके रहने की शक्ति के अंत तक पहुंचकर पेड़ नीचे गिर जाता है। ओके, द ट्री crashes downwards।
इट शेक्स ऑल इट्स नेबर्स थ्रू आउट। ओके, ये अपने सभी पड़ोसियों को हिला देता है। जो आसपास जो बाकी सब पेड़ थे ना, वो भी इसके वजह से हिल जाते हैं, जितनी जोर से ये ग्राउंड पे गिरता है। ओके, एंड 200 years steady growth has been ended in less than 2 hours। और 200 साल की स्थिर और या कंटिन्यूअस ग्रोथ, वृद्धि करती हुई ये ट्री 2 घंटे से भी कम समय में समाप्त हो जाती है।